آپ غوث اعظم کی کرامتوں کو اشعار میں ڈھال کر پڑھتے ہیں. ہمارے سید عبد القادر صاحب غوث اعظم کی منقبت کو پڑھے اشعار میں ڈھال کر، لیکن سرکار ملت کا جو خاندان ہے اور جو خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں وہاں کے صاحب سجادہ غوث اعظم کی کرامت کو دکھاتے ہیں. اب آپ کہو گے کہ غوث اعظم تو کب کو اس دنیا سے چلے گئے. ہم لوگ تو غوث اعظم کی کرامت کو اشعار میں ڈھال کر سناتے ہیں، یا خطیب یا مقرر غوث اعظم کی کرامت کو نثر میں بیان کرتے ہیں. آپ آج بھی غوث اعظم کی کرامت کو دکھاتے ہو تو غوث اعظم تو ہے نہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری اپنی زندگی میں صرف ایک قرآن مقدس اپنے دست مبارک سے لکھا، جو ایک ورق میں ایک پارہ اور 30 ورق میں مکمل قرآن پاک ہے، جس کو آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں. لکھنا آسان ہے لیکن پڑھنا مشکل ہے. تو یہ وہ غوث اعظم نے قرآن مقدس جو اپنی دست مبارک سے لکھا، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں. آج بھی اس خانقاہ میں پہلی ربیع الاول شریف کو جو عرس ہوتا ہے، یہ غوث اعظم کی کرامت وہاں کے صاحب سجادہ حضور ملت الحاج حضرت سید شاہ شرف الدین قادری اپنے دست مبارک سے کراتے ہیں. اور جس خانقاہ میں جہاں آپ گئے تھے، وہ خانوادہ بھی سیدنا پاکی کا خانوادہ ہے، جہاں آپ گئے تھے اگلے مہینے 4 تاریخ. تو یہ وہ سرکار ملت اولاد غوث اعظم کی اولاد ہے. اور اس علاقے کے تمام مزارات پر عرس کے موقع پر قوالیاں ہوتی تھی. یہ سرکار ملت آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب اس علاقے میں آئے مجاہدہ کرتے ہوئے، تو آپ نے اپنا ایک مسکن مسجد کے بغل میں بنایا اور وہیں سے بھی تبلیغ دین کا کام شروع کیا. مجاہد ملت جو اس علاقے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا ثانی اس علاقے میں کوئی نہیں تھا، لیکن مجاہد ملت جب تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اپنے اولیاء کرام کے آراس کے موقع پہ قوالی کے انعقاد نہ کرو، لوگ مجاہد ملت کی باتوں کو نہ سنتے تھے. لیکن یہ غوث اعظم کی کرامت ہے سرکار ملت کہ جب بھدرک کی سرزمین پر آ گئے تو مجاہد ملت بھی خوش ہو گئے کہ اب ہم شریعت کی بات لوگوں کو بتائیں گے اور سرکار ملت لوگوں کو اس پر عمل کرائیں گے. یہ دوستی وہیں سے شروع ہو گئی. یہ علاقہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے سرکار ملت اور مجاہد ملت کی دوستی. مجاہد ملت سرکار ملت سے کافی عمر میں بڑے تھے، لیکن جب مجاہد ملت کو معلوم ہو گیا کہ یہ سرکار ملت اولاد غوث اعظم ہے، تو میرے سرکار ملت کے دست مبارک کو مجاہد ملت نہیں چومتے تھے. میرے سرکار ملت کے دست مبارک کو مجاہد ملت نے کبھی نہیں چوما. جب چوما تو سرکار ملت کے قدموں کو بوسہ دیا. اور سرکار ملت نے کہا کہ آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، آپ ہم سے علم زیادہ رکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ تقویٰ رکھتے ہیں. تو مجاہد ملت نے کہا سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جسم کے اندر جو غوث اعظم کا خون دوڑ رہا ہے، جو مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت، حضور سرکار ملت، حضور چھوٹے سرکار قبلہ، نعرہ تکبیر. یہی تک سرکار مجاہد ملت کا عشق نہیں رکا. یہی تک مجاہد ملت کا عشق نہیں رکا. ایک بار مجاہد ملت سرکار ملت کی سے ملاقات کرنے کے لیے جب مسجد میں گئے، سرکار ملت جس جگہ کو رہتے تو وہ مسجد کے نام سے مشہور تھی. تو جب گئے مجاہد ملت ملنے کے لیے، خادموں سے کہا جا کر تو حبیب الرحمان ملنے کے لیے آیا. تو خادموں نے کہا سرکار ملت نہیں ہے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں. اب مجاہد ملت کا عشق ہے. آپ دیکھیے اتنے بڑے عالم، عمر میں نہ جانے کتنے سال میرے سرکار ملت سے بڑے تھے. پورے علاقے میں اگر کوئی علم والا تھا تو وہ مجاہد ملت کی ذات تھی. جب خادموں نے کہا کہ سرکار ملت نہیں ہے تو مجاہد ملت کو چلے جانا چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے. لیکن مجاہد ملت کا عشق دیکھیے کہ سرکار ملت کے دروازے پر جو ٹاٹ اور سیمنٹ کے بورا کا جو پردہ ٹنا ہوا تھا،
मुजाहिद मिल्लत ने उस पर्दे को बोसा दिया और खादिम को कहा कि जब सरकार आएंगे तो कह देना गुलाम हबीबुर रहमान आपसे मुलाकात करने आया। अभी हमारे नकीब ने कहा ऐसे शायर को बुलाओ जो अहले बैत से मोहब्बत करे। सच्चाई तो यही है कि हदीस शरीफ उठाकर आप पढ़िए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स हो और काबतुल्लाह शरीफ के सामने हो, एहतिकाफ की नियत किए हुए हो और रोजा भी रखे हुए हो और मकामे इब्राहिम के सामने अगर वो नमाजें भी पढ़ता हो और अगर उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ अहले बैत है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। यानी इतना मुत्तकी शख्स जो काबतुल्लाह के अंदर हो, रोजेदार हो, एहतिकाफ की नियत किए हो और मकाम इब्राहिम के सामने नमाज़ें अदा करता हो, अगर उसके दिल में एक जर्रा बराबर अहले बैत का बुग़्ज़ होगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जितने लोग खड़े या बैठे, आप अपने दिल को झांक लो, एक जर्रा किसको कहते हैं इसको भी सुन लो, उसके बाद मेरी बात अब खत्म होने वाली है। जब आप अपने रूम में हो, वो रोशेदान जब होता है और जब सूरज की किरण जब उसके ऊपर पड़ती है तो आप अपने रूम के अंदर देखोगे बहुत छोटी चीज उस धूप की रोशनी में नजर आती है उड़ते हुए, उसको जर्रा बोलते हैं, तो उतना सा भी अहले बैत का बुग़्ज़ अगर आपके दिल में है तो आपकी नमाजें खड़ी रह जाएगी, आपका रोजा रखा रह जाएगा, आपकी तमाम इबादतें रियाज़ें पड़ी की पड़ी रह जाएगी और आप जन्नत में जा नहीं सकते। अब आओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। अव्वल खलीफा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, मेरे सरकार से मिलने सरकार के घर आए हैं। हज़रत इमाम हसन दरवाजे पर खड़े हुए हैं, हज़रत इमाम हसन दरवाजे पर खड़े हुए, उम्र 7 साल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हसन दरवाजे पर खड़े हुए और उनके पैर में मिट्टी लगी हुई है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बैठ जाते, मेरे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैर में लगी हुई मिट्टी को खुद झाड़ते। ये है अहले बैत की मोहब्बत। ऐसा नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे हसन के पैर की मिट्टी को झाड़ दिया तो मेरे अबू बकर सिद्दीक़ का मर्तबा कम हो गया, नहीं, ये इश्क था अहले बैत के खानदान वालों से, ये मोहब्बत थी अहले बैत के खानदान वालों से कि अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बाद भी दुनिया वालों को बता रहे कि अरे लोगों, किसी ओहदे पर पहुंच जाओ, किसी मर्तबे पर पहुंच जाओ, किसी मसरत नशी बन जाओ, कहीं के भी गद्दी नशी बन जाओ, कहीं के भी मुतवल्ली बन जाओ, चाहे दुनिया का ओहदा मिल जाए या आखिरत का कोई मजहबी ओहदा तुम्हें मिल जाए, इस बात का तुमको ख्याल रखना होगा कि अगर तुम्हारे सामने अहले बैत की बात आए तो अपनी गर्दन को झुका दो, उसी में तुम्हारी कामयाबी और उसी में तुम्हारी निजात है। हज़रत उमर की बारगाह में आओ। हज़रत उमर वो कौन उमर है जो 22 लाख मुरब्बे मील की पर उनकी हुकूमत थी, यानी आधी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी हज़रत उमर की। खलीफतुल मुस्लिमीन है, अपने कार्यालय में बैठे हुए, कार्यालय समझते ना, ऑफिस में बैठे हुए, अपने दफ्तर में खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बैठे हुए, आपके साथ आते हज़रत अब्दुल्ला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। हज़रत उमर ने नजर उठा कर देखा, कहा कि बेटा ऑफिस में दाखिल हो रहा है, आपने कहा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मैं किसी काम में मसरूफ हूँ, मैं अभी कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, ऑफिस में मत आओ। उस जमाने की ऑफिस इस जमाने से अलग होती थी। इस जमाने के ऑफिस में अच्छी कुर्सी होती है, गद्देदार कुर्सी होती है, कंप्यूटर में एसी लगा होता है, दरवाजे पर शीशा लगा होता है और वो ऑफिस चाको चौबंद होती है। लेकिन वो उस जमाने की ऑफिस थी और ये उस जमाने के सरदार थे जिनकी ऑफिस में फटी हुई चटाई थी और उस चटाई पर आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए। उनके रूम में एसी नहीं है, लाइट नहीं है, एक लालटेन जल रही है और दरवाजे पर कोई कीमती दरवाजा नहीं लगा हुआ बल्कि टाट का एक पर्दा टंगा हुआ। बेटा जैसे ही अंदर दाखिल हो रहा था मना कर दिया, अभी हम मसरूफ हैं, थोड़ी देर के बाद आओ। जैसे ही बेटा घर से बाहर निकला हज़रत हसन पहुंच गए। कुछ काम था हज़रत उमर से, सोचा कि घर के अंदर जाकर उमर से मुलाकात कर ले। हज़रत उमर इब्न अब्दुल्लाह से पूछा क्या बात है।
तुम अभी गए वापस आ गए। हजरत उमर इब्न अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अब्बा जान अभी कुछ काम कर रहे। उन्होंने कहा थोड़ी देर ठहरो, हम मसरूफ हैं। हजरत हसन भी वहीं पर रुक गए कि जब बेटा को इन्होंने जाने से रोक दिया, मैं जाऊंगा तो मुझे भी जाने से रोक देंगे। ये आवाज हजरत उमर के कान में गई, पुकारा उमर, बेटा बाहर कौन है? हजरत अब्दुल्ला आए, कहा बाहर हसन आए, कहा कि भेज दो, कहा कि भेज दो। हजरत इमाम हसन जब अंदर गए, हजरत उमर खड़े हो गए और कहा, हसन मैंने अब्दुल्ला उमर अपने बेटे को आने के लिए मना किया है। मैं तो आपके नाना का खादिम हूँ, मैं तो आपके नाना का गुलाम हूँ, मैं तो आपके नाना के दिए हुए ओहदे पर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आपके लिए दरवाजा बंद नहीं है, आप जब चाहे आ जाए। आप उठकर अपनी जगह पर इमाम हसन को हजरत उमर ने बिठाया। है इस कायनात में कोई मर्द, इस दुनिया में कोई मर्द है जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत हो और सैयदों की ऐसी ताजीम करे? हम तो एक कमरे में बैठकर एक मदरसे के सदर मुदरिस बन गए तो समझा बहुत पावर वाली हो गए। एक खानदान के मुतवल्ली बन गए, समझ के बहुत बड़ा ओहदा हमें मिल गया। एक इलाके के सरपंच, मुखिया, तहसीलदार कुछ भी बन गए, हम समझ रहे बहुत पावर वाले हम हो गए। अब हमारी नजरों से सादात की इज्जत कम हो गई। तो ये दुनिया है मेरे दोस्तों, ये दुनिया है। यहाँ तो इज्जत तुमने पा लिया, लेकिन याद रखो कल मैदान महशर में तुम्हारा नबी तुमसे सवाल करेगा कि चंद मिनटों के लिए तुम्हें वो जो ओहदा मिला था, तुमने मेरी औलादों की इज्जत ना की। अब यहाँ तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? कौन करेगा तुम्हारी शफाअत? तो मेरे दोस्तों, आप इस बात को याद रखो, वो सरकार मिल्लत जिनकी पहले तो मुशक्कत का आज समरा है कि ये सारे लोग कहाँ कहाँ से नाते नबी सुनने के लिए आए और बादब बैठे हुए हैं। जिसको बैठने की जगह नहीं मिली वो खड़ा हुआ। ये साबित कर रहा है आज हमारे मेहमानों के दरमियान कि हमारी पीर का हमको सिखाया हुआ वो अदब है कि हम जहाँ हैं वहीं बादब खड़े रहेंगे, हम जहाँ हैं वहीं बादब बैठे रहेंगे। मेरे दोस्तों, मुहर्रम शरीफ का महीना 29 तारीख को मुहर्रम है। डीजे वीजे तो निकलेगा जरूर, नहीं है ना? नहीं नहीं निकलेगा। नहीं बस समझदार है, इसका मतलब है कि सरकार मिल्लत की तालीम टूट गई आप लोगों को। अगर जन्नत में जाना है तो डीजे मत बजाना। कुछ दिन मुसलमानों के लिए खास होता है। ईद के दिन मुसलमान जरूर दारू शराब पीता है खुशी में। मुहर्रम के दिन पी पा के निकलते हैं इमाम हुसैन के नाम पर, ऐसा लगता है यजीदियों से लड़ने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब यजीद हमारे सामने नहीं आएगा, यजीद अब हुसैनियों के सामने नहीं आएगा। ये बात तय है कि अगर कोई यजीदी होगा भी तो अपनी पहचान नहीं कराएगा, छुप कर रहेगा, लेकिन बोलेगा नहीं जब यजीद के मानने वाले, और हुसैनी सीना तान कर रहेगा। और हर जगह मिंबर, मिहराब, खानकाह, मस्जिद, मदरसा, हर जगह अपने आप को मनवाएगा कि हम हुसैनी हैं। 10 मुहर्रम का अगर डीजे निकालते हो तो तुम्हें तुम्हारे पीर की कसम है और तुम्हें तुम्हारे हुसैन की कसम है कि डीजे मत निकालना। नाचना गाना नहीं, बल्कि ये सोचो इमाम हुसैन का पूरा खानदान एक दिन में शहीद हो गया। हमारे घर में एक मैयत होती है तो हम पहचान खो देते हैं कि मेरे घर में आया कौन कौन था। खाना हम भूल जाते हैं, कपड़ा पहनना हम भूल जाते हैं। अब तो हमारा ये हाल हो गया कि हमारे घर में मैयत हो जाती है तो मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है वो भी हम भूल जाते हैं। गम में घर में कोई रिश्तेदार अगर इंतकाल कर गया तो हम भूल जाते हैं कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है, मैयत को कफन कैसे पहनाया जाता है। तो अब सोचो, जिस हुसैन के नाम पर तुमने जिक्र हुसैन की महफिल सजाया है, उनके घर में एक नहीं अपना 19 लोग एक ही दिन में शहीद किए गए। अपने खून के रिश्तेदार 19 लोग शहीद हुए और दोस्तों को मिला तो 72 लोग शहीद हुए। उस दिन तो मुसलमानों याद रखो कि जब 10 मुहर्रम को यजीदियों की तलवारें और तीरें चल रही थी तो आसमान के फरिश्ते रो रहे थे, सूरज कांप रहा था, सितारे हिल रहे थे, ये हरे भरे सब तो शादाब दरख्त कांप रहा था और हर चीज, हर शय, हर जर्रा रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा था, मौला आज कौन
পয়সা দিবে